Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is think and twice. Actually, this is all topics we have done in our previous classes. So I'm going to start just one by one questions so we can revise our all topics here first. Just a summary type topics. Okay, here we are having question number 1, write in expanded forms. So the first one we are having third part, question number 1, third part, that is 307. So here we are having 300, that at this is at tens place 0 and this is our 70. Clear? Okay, come to our next part, that is question number 2, how many? Okay, so let's take second part, how many tens are there in 88? Okay, so we are having 8 tens. So we are going to write this like 8 tens are there in 88. So come to our question number 3. Here we are having fill in the boxes. Okay, then let's see question number 3, third part. So we are having 3 hundreds, 14 tens and 15 ones. So how many hundreds are there? So we have to change them. Okay, so if we see there are 14 tens. So let's see. Here we are in 15 ones. So I can write 5 ones and this will become 15 tens. And if there are 15 tens, we are going to change. Okay, we have to do it. I need some space. So let's pick this part. Okay, here we are having 15 months. So I am breaking down this 5 plus 10. So we are having 5 ones. And this 10 will switch to 14 tens. Clear? So we are going to just add in this one. This is equal to 15 tens. अभी 15 टेंस हो गया तो 10 टेंस मिलके क्या बनाते हैं 100, तो ये हो जाएगा 5 टेंस. तो 10 प्लस 5 टेंस हो गया, तो इसको हम यहीं पर रख लेंगे. 10 आगे जाएगा तो 300 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 400 प्लस 5 टेंस एंड 5 वक्स. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर जस्ट लाइक दिस इज 400 and 5 tens and 5 months. Okay. Next is question number 4. Solve these sums. Okay. तो यहाँ पर हम लिखते हैं question number 2. So here we are having word problem type question. तो हमें यहाँ पर statement लिखनी है, then उसको according to language समझ कर उसे solve करना है. So here we are having Kamla has 64 toffees. Vimla has 29 toffees. How many toffees Kamla has more than Vimla? अब कितनी टॉफीज ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा कैसे पता चलता है कितनी ज्यादा है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट जस्ट लाइक नंबर ऑफ टॉफीज with Kamla. So here we are having 64 toffees. Next is number of toffees with Vimla. That is 29 toffees. So we are going to find out the number of more toffees with Kamla. So we are going to separate these two numbers. That is 14 minus 9 is 5. 5 minus 2 is 3. That is 35. So Kamla has 35 more toffees than Kamla. Okay, here we are having question number 5. Divide and fill in the boxes. Okay. So we have to just divide it just like कि हमें 50 को 5 से डिवाइड करना है. So by which number we are going to multiply by 5? So we get 50. So 5 tens of 50 होता है normal. 6 9 की से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाता है. दैट इज 9 4 36. क्लियर?
चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग सब। So here we are having question and remainder. So let's pick this part. Okay, we are going to divide 63 by 6. So हमें क्या करना होता है कि भाई ये जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट प्लेस है, हमें इसको इस नंबर से डिवाइड करना है। जस्ट लाइक 6 1 ज़ा 6, या तो इक्वल आना चाहिए या ऐसे थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर कॉपी करेंगे यहाँ पर हो गया 3। बहुत से बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, बट आपको ऐसे नहीं छोड़ना। आपको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो करनी चाहिए। आप 0 ही माइनस करें। अब देखिए 6 1 ज़ा करेंगे तो इससे बड़ा ही नंबर आना है, तो इससे छोटा क्या होता है 0। तो 6 0 से 0। अब देखिए माइनस करने के बाद जो बचा है वो क्या होगा हमारा रिमाइंडर, एंड ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की बात करें, सो वी आर हैविंग 10, रिमाइंडर की बात करें वी आर हैविंग 3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, टिक राइट फॉर इवन नंबर्स इन क्रॉस फॉर ऑड नंबर्स। सो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका हमें पता होता है कि ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे या वो 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो इनके अपोजिट होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे बोला टिक द इवन नंबर क्रॉस करना है ऑड के लिए। तो देखिए 30 इवन नंबर हो गया, ये ऑड हो गया, दिस इज इवन 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 ऑड, दिस इज ऑल्सो ऑड एंड दिस इज इवन। क्लियर? आप ऐसे ही मार्क कर लें। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेट अस राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स आप लोगों को आते थे, ठीक है। जस्ट लाइक देखिए दिस इज वंस, टेंस, 100। सो वी आर हैविंग 200 and we are having 58. Clear? So this is our answer. Next is question number 9. Write the correct numbers in the boxes. So we are having third part, that is 370. So हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 317 as a answer. Clear? So next is question number 10. What comes just before the given number? तो चलिए बिफोर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट -1 करते हैं। यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 124। क्लियर? ओके, कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यू हैव टू फाइंड आउट द जस्ट आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +1। तो इसमें +1 करेंगे, दैट इज 300। क्लियर? सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम। सम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड पार्ट, दैट इज 6 + 1 7 + 5 दैट इज 12 12 2 कैरी 1 6 + 6 12 13 14 15 + 1 16 carry 1 5 6 7 8, so this is 8. Clear? Okay, come to our next part, that is 13. So here we are having third part, this is 7 + 5 that is 12. Sorry, we have to subtract now. 7 - 5 that is 2. 9 8 - 9 not possible, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड यहाँ पर हो जाएगा 18, दैट इज 9 6 - 1 इज 5। क्लियर? ओके, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप देखें यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आता है आपके पास सेकंड पार्ट, दैट इज 8 2 16 6 कैरी 1 6 2 12 + 1 दिस इज 13। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखते हैं फोर्थ पार्ट, इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक इज मंडे and then Wednesday will be the day of the week. So Monday is the first day, then Tuesday, and then Wednesday. So Wednesday is the third day of the week. So we can say that third day. Okay. Next is इसमें एक part और देख लेते हैं, that is seventh part. There are dash months in a year. So how many months are there? 12 months. Okay, question number 16. Answer the questions given below. So we are having fourth part, how many paisa are there in a rupee? If we talk about the paisa in a rupee, that is 100 paisa in a rupee is there. Okay, so ये हमारे conceptual wise question थे जो हमें करने। Now come to question number 17। अगर question number 17 देखते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है compare the numbers using sign greater than less than। Okay,
तो चलिए यहाँ से देखते हैं फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर 256, दिस इज 206, 2 करेंगे 5 0, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन, सो वी आर पुटिंग दिस साइड. Okay, next is question number 18, that is color 1/4 of each of the following figures. अब देखिए हम यहाँ से सर्कल को पिक कर लेते हैं. अब देखिए 4 पार्ट्स हैं, 1/4 का मतलब है कि आपको 4 पार्ट्स में से एक पार्ट में क्या करना है, कलर करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज टेक द पिक्चर इन विच हाफ ऑफ द पोर्शन हैज बीन शेयर्ड. अगर आप देखेंगे तो इसमें तो मुझे पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल लग रहा है. ठीक है, ये हाफ पार्ट है, तो ये हो गया मेरा आंसर. क्लियर. सो ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे जो हमने लास्ट ईयर करे थे. तो अब आपको एक समरी बेसिक मिल गई होगी, जो हमने लास्ट टाइम करी थी उसका रिविजन हो गया, और आपको क्या रहना से प्रैक्टिस करनी जो बाकी पार्ट्स हैं. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, देन ऑल द बेस्ट.